Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today it is class 11th. Subject is economics. Class 12 subject economics. As we know, in our last videos we discussed about organization of data. Now this time our topic is presentation of data. Our topic is presentation of data. There are three forms of presentation of data. Remember, there are three forms of presentation of data. Data presentation के तीन forms हैं. Number first is textual or descriptive presentation. Textual or descriptive presentation. Number second is tabular presentation. Number third is diagrammatic presentation. आपको मैंने पहले ही बताया है, आपके पास कलम भी होना चाहिए, आपके पास कॉपी भी होनी चाहिए, आप नोट करके रख सकते हैं. There are, I will repeat again, there are three forms of presentation of data. There are three forms of presentation of data. Number first is textual, textual or descriptive, descriptive, descriptive presentation. Number second is tabular presentation, and number third is diagrammatic presentation of data. Diagrammatic presentation of data. Now, what is textual or descriptive presentation? इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन क्या है? A descriptive presentation is most common form of presentation of data. इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं. ये डिस्क्रिप्टिव या टेक्सचुअल जो इसको हम कहते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव या टेक्सचुअल जो डाटा है, ये प्रेजेंटेशन है, ये कॉमनली यूज किया जाता है. A descriptive presentation, most common form of presentation of data. Most common presentation of data when the quantity of data is not very large. When the quantity of data is not very large. याद रखो, textual और descriptive presentation ये है, it is most common form of presentation of data when quantity of data is not very large. When quantity of data is not very large. Example हमारे पास है, हम लिखते हैं, अगर हम ये लिखेंगे 50% workers reported for duty. 50% workers, 50% employees reported for duty. जब हम इस तरह कहते हैं, ये है डिस्क्रिप्टिव. इसको हम कहते हैं ये डिस्क्रिप्टिव और टेक्सचुअल फॉर्म. या हम ऐसे भी कहते हैं 10 out of 30 students are in the class. 10 out of 30 students are in the class. इसको हम कहते हैं ये है टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव. जैसे कि अगर हम ऐसे भी आज भी कहेंगे कि आज कोविड-19 चल रहा है, आज वर्कर्स घरों में बैठे हैं, गवर्नमेंट अगर बैन उठाएगी, गवर्नमेंट ने कुछ बैन उठाई भी है. अब यहां पर लिखते हैं हम 30% employees reported to their duties after the lockdown. After the lockdown. ऐसे हम कह सकते हैं. जैसे जब हम ये कहते हैं 30% employees reported the duty after lockdown, इसको कहते हैं ये है डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन. ऐसे हम अगर ये भी कहेंगे, आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन का दौर चल रहा है,
अगर हम ये कहेंगे किसी जोन में, किसी एरिया में, किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, अगर हम किसी जोन की बात करें या किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर हम ये लिखेंगे 100 schools out of 300 have organized या or organizing online classes. अगर हम ये कहेंगे 100 schools out of 300 या 100 out of 300 schools, 100 out of 300 schools are organizing online classes. Online classes. इस डाटा को हम, इस चीज को हम कहते हैं, ये है डिस्क्रिप्टिव और टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. अब ये ना सेकंड इज दैट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन. टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन में आपको याद रखना है, a statistical table is a systematic organization of data in the columns and rows. Vertical dissections are known as columns and horizontal dissections are known as rows. ये इकोनॉमिस्ट, ये स्टैटिस्टिशियन जो है, ये भी वो अपने अपनी थ्योरी देते हैं, वो अपना उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दे दी है. उन्हीं की एक डेफिनेशन ये भी है, a statistical table is a systematic organization of data. A statistical table is a systematic organization of data in the columns and rows. In the columns and rows. हम इस वक्त पढ़ते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन. टेबुलर प्रेजेंटेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि ये a statistical table is a systematic organization of data in the columns and rows. In the columns and rows. इसमें क्या है? वर्टिकल डाइसेक्शंस. वर्टिकल डाइसेक्शंस, वर्टिकल डाइसेक्शन जो इस तरह होते हैं, खड़ा होते हैं, इनको हम कहते हैं वर्टिकल डाइसेक्शंस और नोन एज कॉलम्स. इनको हम कॉलम्स कहते हैं, कॉलम्स. और एंड हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल इस तरह होते हैं, जो लाइंस होते हैं, इनको हम कहते हैं वर्टिकल हॉरिजेंटल डाइसेक्शंस और नोन एज रोज. इनको हम रोज कहते हैं. यानी कि एक टेबल जो है, टेबल का एक ये खुसूसियत है, टेबल जो बनता है, एक टेबल में कॉलम्स होते हैं और रोज में होते हैं. कॉलम्स एंड रोज, कॉलम्स और रोज मिलकर एक टेबल बनाते हैं. इसको हम कहते हैं, ये है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. टेबुलर प्रेजेंटेशन में आपको याद रखना है, a statistical table is a systematic organization of data in the columns and rows. Vertical means जो ऊपर से नीचे है, vertical इनको कहते हैं, इनको हम कहते हैं these are known as columns, and जो horizontal होते हैं, horizontal को हम कहते हैं these are rows. Columns and rows से मिलकर बनता है एक टेबल, जिसमें हम अभी तक पहले हम पढ़ते थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. जो हमने डाटा ऑर्गेनाइज किया है, अब उस डाटा को हमें अब करना है, प्रेजेंट करना है. इस चीज को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन. इस चीज को हम करते हैं प्रेजेंटेशन. इसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं प्रेजेंट. इसके लिए हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं, टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, टेबुलर प्रेजेंटेशन है और है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. अब आगे चलते हैं. अब हम देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेबल. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेबल? कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, इसके देयर आर 8 कंपोनेंट्स ऑफ टेबल. देयर आर 8 कंपोनेंट्स ऑफ टेबल. नोट करके रखो, देयर आर 8 कंपोनेंट्स ऑफ टेबल. 8 कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, यानी टेबल जो बनता है, इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल होता है? इसमें है नंबर फर्स्ट कंपोनेंट इज that is table number. Write down. It is table number. First component is table number. Second is title. Third is head note. Fourth is stubs. STUBS. Your stubs. Fifth is caption. CAPTION, caption, your captions. Number 6th is
body or field. Number 7th is footnote. Number 8th is source. टेबल के कंपोनेंट्स जो है, देयर आर 8 कंपोनेंट्स ऑफ टेबल. हम इस वक्त पढ़ रहे हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन में हमें टेबल की जरूरत होती है, टेबल बनाना होता है, और ये टेबल जो होता है इसके देयर आर 8 कंपोनेंट्स ऑफ टेबल. नंबर 1 इज टेबल नंबर 2 इज टाइटल, नंबर 3 इज हेड नोट, number 4 is stub, number 5 is caption, number 6 is body or field, number 8 is footnote, and number 7 is footnote, and number 8 is source. अब टेबल बनाने से पहले हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ टेबल. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेबल जो है इसको अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया है. नंबर 1 जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी. काइंड्स ऑफ टेबल, अभी हम ये देख रहे थे, ये है कंपोनेंट्स ऑफ टेबल. अब जो ये है दैट इज काइंड्स ऑफ टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी. अब इसके सब पार्ट्स हैं. ओरिजिनलिटी के 2 पार्ट्स हैं. ओरिजिनलिटी के पार्ट्स हैं, एक है ओरिजिनल टेबल, नंबर 2 इसका है डिराइव्ड टेबल. ओरिजिनल टेबल एंड डिराइव्ड टेबल, ये है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी. You should remember, according to originality there are 2 types. One is original table, number is derived table, DERIVED, derived table. नंबर 2 जो है that is according to purpose. नंबर पहला था according to originality, नंबर 2 is according to purpose. According to purpose क्या है, इसके भी 2 टाइप्स है, जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल. याद रखो अकॉर्डिंग टू पर्पस क्या है. अकॉर्डिंग टू पर्पस इज जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल. अब 3rd है दैट इज अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन. इसमें हमें देखना है, इसमें ये है 2 टाइप्स इसके भी हैं. एक है सिंपल वे टेबल, दूसरा है 2nd इज कॉम्प्लेक्स वे टेबल. अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन इट इज सिंपल वे टेबल, नंबर 2 इज कॉम्प्लेक्स वे टेबल. अब आगे चलते हैं. जो ये कॉम्प्लेक्स वे टेबल है, कॉम्प्लेक्स वे टेबल के 3 हिस्से हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं. कॉम्प्लेक्स वे टेबल के 3 पार्ट्स हैं. नंबर 1 इज डबल और टू वे टेबल, जिसमें 2 सीरीज की इंफॉर्मेशन होगी, फिर है या 2 डाटा जिसमें दिए होंगे. नंबर 2 इज ट्रिपल वे, जिसमें 3 डाटा दिए हुए होंगे. और नंबर 3 इज मैनीफोल्ड टेबल में है, जिसमें 3 से ज्यादा डाटा दिया हुआ होगा, उसको हम कहते हैं मैनीफोल्ड टेबल. अब आपको याद रखना है कि जो काइंड्स ऑफ टेबल है, टेबल जो बनता है वो एक बनता है ओरिजिनलिटी पर, दूसरा बनता है पर्पस पर, तीसरा बनता है कंस्ट्रक्शन पर. टेबल हम बनाएंगे, ये है 3 तरह के टेबल. एक है ओरिजिनलिटी, दूसरा है पर्पस, तीसरा है कंस्ट्रक्शन. अब ओरिजिनलिटी में आपको याद रखना है, ओरिजिनलिटी में इसके 2 पार्ट्स हैं. एक तो हो गया ओरिजिनल टेबल, दूसरा हो गया डिराइव्ड टेबल. फिर है अकॉर्डिंग टू पर्पस, उसमें है जनरल पर्पस, फिर है स्पेशल पर्पस. अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन उसमें है सिंपल वे टेबल, फिर है कॉम्प्लेक्स वे टेबल. अब जो कॉम्प्लेक्स वे टेबल है, उस कॉम्प्लेक्स वे टेबल के 3 हिस्से हैं. उसका एक अलग एक काइंड होगा दैट इज डबल और टू वे टेबल, फिर है ट्रिपल वे टेबल,
फिर है मैनीफोल्ड टेबल, मैनीफोल्ड टेबल। ये आपको इस तरह अभी फिलहाल इतना याद रखना है, आप इसको अलग अलग से हम इलाबरेट करेंगे, इट नीड्स मोर टाइम। अब आप अपनी किताबें भी खोल सकते हैं, अपनी किताबों में आप देख लीजिए कि जो यह हमने पढ़ा अभी टेबल के बारे में, हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, ये टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, स्टैबस, कैप्शंस, बॉडी और फील्ड, फुट नोट और सोर्स। आप अपनी किताब में देख लीजिए, वहां पर एक टेबल दिया हुआ होगा, ये चीजें उसमें दी हुई होगी। और आप जब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आप जो काइंड्स ऑफ टेबल है, ये काइंड्स ऑफ टेबल, ये ओरिजिनल टेबल हमें किस जगह जरूरत होता है, ये किस किस्म का होता है, डिराइव्ड टेबल किस किस्म का होता है, जनरल पर्पस वाला किसका, स्पेशल पर्पस वाला किस किस्म का होता है, इसके अलग अलग किस्म दिए हुए होंगे। फिर है सिंपल वे टेबल, फिर है कॉम्प्लेक्स वे टेबल, फिर है डबल वे टेबल, ट्रिपल वे टेबल एंड मैनीफोल्ड टेबल। आई थिंक it is all for today. Inshallah, in our next chapter, in our next topic, I will see, हम उस वक्त देखेंगे कि हम किस तरह ये टेबल बना सकते हैं। और आगे हमारा फिर रह जाता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एक हम कोशिश करेंगे टेबल बनाने की, दूसरा हम जाएंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की तरफ।